until you build the second facility? Yeah, to actually take it out, we follow two rules. One is Canadian C-spine rule, one is Nexus rule. I'm not going to demonstrate that, but because we don't have time. Next time, inshallah. So, okay. So, next slide. In your entire life, you will never see these patients whom you can't intubate, can't ventilate. It's occasional you see patient, but if you remember this, how to do it, it's a very, and I was not going to this destination. Here you see most of my seniors and my scenarios and demonstration on pediatric trauma that will include chest drain, that will include tracheostomy, that will include many procedures like IO and ultrasound, like we do fast scan. So I'll not take much time. I really am very thankful to you. You invited me again. We did one such Professor, and will introduce and invite esteemed guests, faculty members, and please, Assalamualaikum. And great future, and just one of I will be your at Dalagam. Kindly hand over MMABM and MCCH hospital back to health services. I have been telling this everywhere with this SCIC, my mic was snatched that time in front of governor. I told that kindly hand over MCCH and MMABM hospital back to health services. In spite of referring patient to Srinagar, we refer to Dalgaon. Because we also deserve जहाँ हम बसते हैं वहाँ इंसान भी रहते हैं. आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम? लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे. मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी. मैं जहाँ बसता हूँ वहाँ इंसान न बसते होंगे. हम भी यहाँ इंसान हैं. We have been taking this cadet class. Kindly give us some status, give us medical facilities. We need a 500-bedded medical college hospital at Dalgaon, multi-specialty hospital. So with this, I have our countdown has started now. अब 5.5 साल हो गए, 6 महीने रह गए. तो हमारे बीच अब कोई ताल्लुक ना सही, लेकिन मुझे रंजो उदासी के सफर में साथ चलने दे. खामोशी का ये सन्नाटा तेरे होंठों से जिसने मुस्कुराहट छीन के रख दी. यही खामोश सन्नाटा किसी बेरहम आंधी की तरह मेरे हंसी ख्वाबों को ढा गया. लेकिन के मलबे में दबी आरज़ू मेरी जो अब भी सांस लेती है, तेरी खातिर तड़पती है. हमारे बीच अब कोई ताल्लुक ना सही, लेकिन मुझे रंजो उदासी के सफर में साथ चलने दे. I invite my friend, my Organizing Chairperson, Chief Organizing Secretary, Professor, importance of life support in today's era. These conferences and workshops, I believe, not only help in updating our knowledge, but we share our experiences. And as we are endeavored, we learn from each other. Government Medical Anand is it's very close to my heart actually. I have been here once where I was under the assistant for DNB program. I was very sad that day. It was among the saddest days that I had when I saw the infrastructure here. I personally know almost all of you. Ma'am, they have a wonderful faculty, experienced, trained manpower, senior residents, they have everything. All they need is infrastructure. Now, and I'm sure under her leadership, this department, we are into pediatric subspecialty, a decade for pediatric subspecialty. Neonatology, and this biology, CME will be a great success for the day. Now the Department of Pediatrics at GMC has an impressive last 1 year. They have done more than 260,000 admissions in the OPDs, and they have treated more than 14,000 patients in the IPDs. So this is a huge amount. This is a huge number because we are catering to 4 districts, and because of the inception of the train through Sangaldan, we usually get a very large rush of patients. At 9 and 10 in the evening when I go and see, we see the OPD as if it is a daytime. It looks like a daytime, although it is 10:30 in the night. Then the department's commitment to provide the highest quality of care is evident through their numerous initiatives and achievements. Last year in 2023, the Department of Pediatrics hosted the first ever North Zone Neocon in the Union Territory of J&K with Dr. Shaukat Hussain Tali serving as the Chief Organizing Secretary. Take a moment to
Dr. Muzaffar Jan, sir. Next to Dr. Mehdi Hassan TV, sir. Najib ma'am. Rubina Haqqar, Professor I. Present memento to Dr. S. Dr. Sheikh. Dr. Ghulam Rasool Wani, sir. Dr. Suhail Naik. Okay, Deep Singh. I request Principal Ma'am to give Masood Iqbal Bhatt. Head Department of the Pediatric Sickness Medical College. Your presence has truly elevated the significance of this occasion. A special thanks goes to Professor Tulsar, Head Department of the Pediatrics Government Medical College, Baramulla. Special thank you goes to our speakers for the day, Dr. Mehdi Hassan, Dr. Masood Iqbal, Dr. Yasir Bashir, Dr. Mudassir, Dr. Bashir Ahmed. Also very much thankful to the Chief Organizing Secretary, Dr. Shaukat Santali, Head of the Department of Pediatrics, Organizing Chairperson, Professor Sheikh Mushtaq Ahmed, for being pillar of strength in organizing this CME. प्रोग्राम 8 अगस्त को एक अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक ब्रांच ने साइमुलेशन ऑफ एडवांस्ड पीडियाट्रिक लाइफ सेविंग कोर्स का एक CME ऑर्गेनाइज किया है। इसमें खास खसूसियत ये है कि हमें ब्रिटिश कश्मीर मेडिकल एसोसिएशन के 6 डॉक्टर्स आए हुए हैं लंकाशायर, इंग्लैंड और ब्रिटिश एरिया से। सो ये एक एडवांस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि साइमुलेशन पे हम ट्रेन करेंगे अपने यहाँ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को कि हमें आगे जाके ऐसी चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करना है, अर्ली लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स कैसे करने हैं इन पेशेंट्स के लिए। तो ये बहुत ही अपर लेवल का एक कॉन्फ्रेंस है, इसमें वही फ़र्क है। इससे पहले हमने 7 दिन ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया और उसको कंक्लूड करने के लिए हमने आज ही CME किया था। इस CME का फ़ायदा यही है कि हम साइमुलेशन पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस करके अपने स्टूडेंट्स और अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो सीखें और ये अपने बाकी पेशेंट्स पे उसको लागू करेंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इन्होंने कम से कम 2.5 लाख पेशेंट्स को 1 साल में ट्रीट किया है और 16,000 से ज़्यादा पेशेंट्स इन्होंने एडमिट किए हुए हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश लोड है क्योंकि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करता है और जब से संगलदान की ट्रेन आई हुई है तब से हमें कुछ जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स के भी पेशेंट्स आते हैं। तो यहाँ बहुत ही ह्यूज रश है और हम सून स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ICU जिसमें हम बड़े बच्चों को भी इंट्यूबेट करेंगे। उसके लिए हमारे वेंटिलेटर्स ऑन वे है और मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स को कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। और हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको कि APJ कलाम और अटल प्राइज़ मिले हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और इन्होंने लास्ट ईयर भी 23 में एक न्यूकॉन किया था, नॉर्थ जोन का एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारी प्री कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहते हैं। सो एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छा काम करते हैं, सारे डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं। मेरी तरफ से इनको 100% सपोर्ट है और आहिस्ता आहिस्ता हम ये
इस मेडिकल कॉलेज को बहुत ही अच्छी ऊंचाई पे लाएंगे। हमें सबको बहुत ही मेहनत करनी है क्योंकि बहुत कुछ यहाँ करने को बाकी है। ये CME का वर्कशॉप था, ये था एडवांस्ड लाइफ सेविंग मैनेजमेंट कोर्स। तो इसमें यह है कि असल में जब भी कोई इंसान होता है, खासकर चूँकि हम बच्चों के साथ डील करते हैं, जब वो बहुत सीरियसली सिक हो जाते हैं तो अल्टीमेटली या कार्डियक अरेस्ट होता है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, फिर बदकिस्मती से उनकी फिर डेथ हो जाती है। तो ये देखा गया है कि इस पॉइंट पे अगर हम इंटरवीन करेंगे तो हम हज़ारों या लाखों बच्चों की जो जान है उसको बचा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जो आज जिस चीज़ पे तवज्जो दी जा रही है वो इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट पे दी जा रही है। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर हो, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर हो, मेडिकल इंटेंसिव केयर हो, सर्जिकल इंटेंसिव केयर हो, व्हाटएवर। तो उससे क्या हो जाता है कि इंसानों को अगर उस वक्त जब इनकी हालत क्रिटिकल हो जाती है, अगर उस वक्त इनको कोई लाइफ सपोर्ट दिया जाए तो इनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। और जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक है वहाँ पे तो जो ये इंटेंसिव केयर यूनिट्स है इनकी बहुतात है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे भी जो पॉलिसी मेकर्स है उनके जहन में भी ये बात आई है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह जो ICUs है वो बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, नए मेडिकल कॉलेज में बन रहे हैं। अब इसमें हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास जो मैन पावर है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट में। तो हमारे इन वर्कशॉप्स का मकसद यही होता है ताकि हम जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेन करें उसमें। अब इसमें सिर्फ ये होता है कि एक दिन के वर्कशॉप में हम तो पूरा ट्रेन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे एक स्टिमुलेशन मिलता है ताकि इनका जहन ये बन जाए, इनको ये समझ आए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनको हम ब्रीफ कोर्सेज के लिए भेज सकते हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। तो उससे जो है लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में हम अपना जो रोल है, जो एक डॉक्टर से एक उम्मीद होती है आम इंसानों को कि हम अगर जब इंसान को लगता है कि हमारा बच्चा जो है ये बच नहीं सकता, लेकिन एक आम आखिरी उम्मीद होती है कि हमारा जो डॉक्टर वो बचाएगा। तो हम ऐसे डॉक्टरों को तैयार करना चाहते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स एक उम्मीद लेके आए और उनकी जो उम्मीद वो पर आए।